Welcome back, guys. Today we are going to learn past continuous tense. Formula is subject plus was verb plus VING plus object plus adverb. This is the formula of affirmative sentence, or you can also say assertive sentence. Then we are going to make yes no question of simple present tense. First we are learning affirmative sentence. It is also called assertive sentence, subject plus was were plus VING plus object. And then after we will make yes no questions of affirmative sentences. The formula would be was or were plus subject plus VING plus object plus question mark. And then we will make passive voice of affirmative sentence, past continuous tense. The formula is object plus was or were plus being plus V3 plus by plus subject. So formula is also written on board. Let's take sentences. Subject plus was were plus VING plus object. जमाने माजी जारिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, चालू भूतकाल. ओके, वो सवाल पूछ रहा था, वो सवाल पूछ रहा था, तो आएगा वो को ही, सिंगुलर होने की वजह से आएगा was, he was, पूछ रहा था, he was asking, सवाल, a question, he was asking a question, वो सवाल पूछ रहा था. तो देखिए यहाँ पर ये ही जो है ना वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, was जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि ही के हिसाब से लिया हुआ है. ही हा करता आहे आणि तो एकवचनी आहे म्हणून इथं एकवचनी सहाय्यकारी क्रियापद was घ्यावं लागेल कारण अनेकवचनी सहाय्यकारी क्रियापद were आहे. ओके, देन asking, it is the ing form of the verb. Asking, it is the ing form of the verb. Also you can say present participle form of the verb. And then next we have taken a question as a object here. So he was asking a question, वो सवाल पूछ रहा था तो प्रश्न विचारत होता. Let's have next sentence. मैं होमवर्क लिख रहा था, मैं होमवर्क लिख रहा था, मैं को I was, लिखने को writing, I was writing homework, I was writing homework, मैं होमवर्क लिख रहा था, मी होमवर्क लिहित होतो. So I is the subject, was is the helping verb, and writing is the VING form of the verb, and homework is object here. So I was writing homework, मी होमवर्क लिहित होतो, मैं होमवर्क लिख रहा था. ओके, हम कॉफी पी रहे थे, हम कॉफी पी रहे थे. सो ये होगा वी, देन आएगा वेयर, वी वेयर ड्रिंकिंग, वी वेयर ड्रिंकिंग कॉफी, वी वेयर ड्रिंकिंग कॉफी. वी इज द सब्जेक्ट, वेयर इज द हेल्पिंग वर्ब, ड्रिंकिंग VING फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड कॉफी इज ऑब्जेक्ट हियर. सो वी वेयर ड्रिंकिंग कॉफी, हम कॉफी पी रहे थे, आम्ही कॉफी पीत होतो. लेट्स हैव नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे बोलने का है कि वो सब मूवी देख रहे थे, ते सगळे चित्रपट पाहत होते. सो दे, देन आएगा वर, दे वर, देन वॉचिंग, दे वर वॉचिंग a movie, they were watching a movie. They is the subject here, where is helping verb, watching it is a ing form of the verb, a movie is object here. So after immediately the subject you have to take helping verb, then after ing form of the verb, and then object. And if the subject is singular, use was as a helping verb. If subject is plural, then use were as a helping verb. And always remember one thing, if you are using was and were, then you have to use ing form of the verb. Okay, and if you are making passive voice, then you can use was were plus being plus V3, was were plus being plus V3 you can also use. So these are the affirmative sentences. हे विधानार्थी वाक्य झालेत. आता याचं प्रश्नार्थी वाक्य बनवायचं आहे, यस नो क्वेश्चन बनवायचं आहे. सो लेट्स मेक सेंटेंसेस. ही वॉज आस्किंग अ क्वेश्चन, वो सवाल पूछ रहा था. क्या वो सवाल पूछ रहा था?
तो प्रश्न विचारत होता का. सो द फॉर्म्युला इज गिवन. सो लेट्स फॉलो द फॉर्म्युला. वाक्यामध्ये जो सहाय्यकारी क्रियापद आहे तो सगळ्यात पहिले घ्या. बोला आता इथं ही वॉज आस्किंग अ क्वेश्चन मध्ये सहाय्यकारी क्रियापद काय आहे? वॉज. ठीक आहे, घेऊन टाका त्याला. त्याच्यानंतर करता कोण आहे? करता ही, तो वॉज ही. त्यानंतर क्रियापदाला ING लावून घ्या. वॉज ही आस्किंग. देन काय? अ क्वेश्चन. And last question mark. Was he asking a question? Was he asking a question? So what kind of changes we have done in yes no question? So see carefully. All sentence is written well, but only the changes are we have taken he in place of helping verb and we have taken was in place of subject. कर्त्याच्या जागेवर सहाय्यकारी क्रियापद घेतलेला आहे आणि सहाय्यकारी क्रियापदाच्या जागेवर कर्ता घेतलेला आहे. फाइल के जगहों पर हेल्पिंग वर्ब लिया वाला है और हेल्पिंग वर्ब के जगहों पर फाइल लिए गए और आखिरी में एक चेंज है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है. शेवटी प्रश्न चिन्ह वापरलेला आहे. सो वॉज ही आस्किंग अ क्वेश्चन, तो प्रश्न विचारत होता का? क्या वो सवाल पूछ रहा था? अब यहां पर है आई वॉज राइटिंग होमवर्क, मैं होमवर्क लिख रहा था. सवाल होगा क्या मैं होमवर्क लिख रहा था? सो इसके अंदर का हेल्पिंग वर्ब जो है उससे सेंटेंस शुरू कीजिए. सो आई वॉज राइटिंग होमवर्क में वॉज हेल्पिंग वर्ब है, कीजिए उससे शुरू वॉज. अब उसके बाद आएगा सब्जेक्ट वॉज आई. उसके बाद आएगा ING फॉर्म ऑफ द वर्ब राइटिंग, वॉज आई राइटिंग. आगे आएगा होम वर्क. एंड डोंट फॉरगेट पुटिंग क्वेश्चन मार्क. सो वॉज आई राइटिंग होमवर्क, क्या मैं होमवर्क लिख रहा था? मी होमवर्क लिहित होतो का? नेक्स्ट सेंटेंस इज वी वेर ड्रिंकिंग कॉफी, हम कॉफी पी रहे थे. आम्ही कॉफी पीत होतोत, आम्ही कॉफी पीत होतोत का? क्या हम कॉफी पी रहे थे? जो ये सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है उससे शुरू कीजिए सेंटेंस को. तो यहां पर है वेयर हेल्पिंग वर्ब, कीजिए शुरू वेयर. उसके बाद आएगा सब्जेक्ट वी, वेयर वी. अब ये ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट सेम आएंगे. वेयर वी ड्रिंकिंग, आगे आएगा कॉफी. सो वेयर वी ड्रिंकिंग कॉफी, क्या हम कॉफी पी रहे थे? आगे ले लेते दे वेर वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रहे थे. ते सर्व चित्रपट पाहत होते. ते सर्व चित्रपट पाहत होते का? क्या वो मूवी देख रहे थे? सो वो जो हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर वो ले लीजिए. वेयर आएगा पहले, वेयर. अब उसके बाद सब्जेक्ट आएगा दे, वेयर दे. अब ING form of the verb and object you have to write in sequence. So watching a movie and question mark at last. So were they watching a movie? Were they watching a movie? क्या वो मूवी देख रहे थे? ते चित्रपट पाहत होते का? अब ये हो गए हमारे yes no questions, ये हुए अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अब हम लोग जाएंगे पैसिव वॉइस की तरफ. पैसिव वॉइस बनाएंगे. So let's have passive voice. Always remember passive voice begins with object, then after you have to put helping verb and then being and then third form of the verb, then preposition by and then at last subject. So being indicates the sentence is from continuous tense. वो सवाल पूछ रहा था, सवाल उसके जरिए पूछा जा रहा था, तो प्रश्न विचारत होता, प्रश्न त्याच्याकडून विचारला जात होता. Object, what is object here? A question. Start a question. अब क्वेश्चन के बाद आएगा ये हेल्पिंग वर्ब. सो क्वेश्चन सिंगुलर है इस वजह से was. So a question was. अब आएगा being. It indicates that this is the continuous formula. So a question was being. अब third form of the verb asked. So a question was being asked. And then preposition and then subjective case is he and objective becomes him. A question was being asked by him. प्रश्न त्याच्याकडून विचारला जात होता, सवाल उसके जरिए पूछा जा रहा था. Let's have next. I was writing homework. मैं होमवर्क लिख रहा था, मी होमवर्क लिहित होतो. होमवर्क माझ्याकडून लिहिला जात होता, होमवर्क मेरे जरिए लिखा जा रहा था. तो ये इसके अंदर असर्टिव सेंटेंस के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो है ऑब्जेक्ट है उससे शुरू कीजिए. ऑब्जेक्ट यह है होमवर्क.
Okay, homework, it is singular object, so it should be was. So homework was, अब आएगा being. being ये indicate करेगा कि ये continuous tense है. So homework was being, अब third form of the verb write का written, preposition by, एक objective me. So homework was being written by me. homework मेरे जरिए लिखा जा रहा था. अब नेक्स्ट, वी वेयर ड्रिंकिंग कॉफी, हम कॉफी पी रहे थे. कॉफी हमारे जरिए पी जा रही थी. कॉफी आमच्याकडून पिली जात होती. सो द ऑब्जेक्ट इज कॉफी. देन सिंगुलर वॉज, ऑब्जेक्ट सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर. कॉफी वॉज, देन इंडिकेट कंटिन्यूअस टेंस है ये, बीइंग. कॉफी वॉज बीइंग, देन ड्रंक, थर्ड फॉर्म ऑफ द verb. So coffee was being drunk, preposition by, and we का objective होगा us. So coffee was being drunk by us. coffee हमारे जरिए पी जा रही थी. coffee आमच्याकडून पिली जात होती. Last sentences. They were watching a movie. ते चित्रपट पाहत होते. चित्रपट त्यांच्याकडून पाहिला जात होता. मूवी उनके जरिए देखी जा रही थी. तो begin the sentence with a movie. Movie, singular helping verb was, a movie was. Then third form of the verb, sorry, being लेना है, being. A movie was being. Third form of the verb, what? Watched. So a movie was being watched. And adverb by, and objective case them. So a movie was being watched by them. मूवी उनके जरिए देखी जा रही थी. चित्रपट त्यांच्याकडून पाहिला जात होता. तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पास्ट कंटिन्यूअस देखा है. पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस लिए हम लोग, उसके बाद यस नो क्वेश्चन लिए, उसके बाद पैसिव वॉइस लिए, और नॉट लगा देंगे. अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. जैसे ही वॉज आस्किंग अ क्वेश्चन, वो सवाल पूछ रहा था, वो सवाल नहीं पूछ रहा था. He was not asking a question. Here after was I have kept not for making negative sentence. Next यहाँ पर है he was asking a question. He was not asking a question. I was not writing homework. We were not drinking coffee. They were not watching a movie. So this was past continuous tense. That's it. Thank you.